one can say the topic from the organometallic chemistry, and particularly in this topic, we will going to discuss the some chemistry behind the metallocene. So metallocene are, yes, I'm audible to you now. So this kind of what structure is there generally in a metallocene. So here, this is what metal, and the two ligands, generally cyclic ligands, which are present, and here metal is between the two ligands. It is just like a sandwich type of the compound is as shown here, sandwich compound. Okay, and if we structurally make a diagram or make a figure for that, look at this is my ligand. Okay, this is my another ligand, and here this is my metal now. Okay, and here the electron density is present on the ligand, and it makes a sandwich type of the compound. The electron density is situated here like this. This is what electron density, right? And such kind of what molecules are called as a sandwich compounds, and you can take the metal is a transition metal series now. This is called as a transition metal, and now transition metals are play an important role for this sandwich type of the components. Okay, so generally these ligands are nothing but the carbon containing ligands. So these are the carbon containing ligands. Say let's say example, I will give the simple example to you. This is what cyclopentadiene, and here metal is there, and this is another cyclopentadiene. Okay, you can take a simple cyclic molecule also, this one like this. You can also take a 6-member ring. Okay, this is 6-member ring, metal, and yeah. So all are the examples of the sandwich type of the compounds. You can also consider here the ligands is of what 8-member series now. This one. Here all such kind of what examples are belong to the category of what metallocene. So generally the carbon ring containing ligands are act as a the electron source. Okay, and here as the reaction is mentioned here, the ligand donate the electron density, that is it coordinated with the metal, and you know the number of carbon site which are coordinated with the metal, that will be called as a hapto number. What is hapto number now? The hapto number is nothing but the number of carbon sites they directly binded with the metal. Okay, so let's say example, here the hapto number is 1. Here the hapto number will be, look the hapto number, and here the hapto number will be different. Now this is 1, this is 3, and this is 5. Okay, so metal and the bond between metal and basically the carbon is going to be called as a sigma bonded type of the system. While whenever the pi ligands are there, this will be called as a pi bond, and this is also called as a pi bond. Okay, so the best example is this is N5Cp twice vanadium, N5Cp twice the iron. Okay, and such kind of complexes are nomenclated as vanadocene, and this will be called as a ferrocene. Okay, what is the name of this compound? Ferrocene. And you know the electron count method. In previous lectures, we had seen how to count that electron. Let's say example, I have this N5Cp twice, and this is iron. Now you can count the electron via two methods. Suppose I have this is my complex, and we can predict the electron. कैसे निकाल सकते हैं हम इसमें? So यहाँ पे आपके पास दो मेथड है जिसके थ्रू हम ये निकाल सकते हैं. एक होती है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, और एक कौन सी होती है? टोटल इलेक्ट्रॉन.
that will be called as a neutral method. Okay, now in oxidation state method we have to consider the oxidation number. फिर oxidation number अगर आपको निकालना है तो फिर n5 का चार्ज आपको पता होना चाहिए. Now each cyclopentadiene is stable when it have one negative charge because it is a 6 pi electron system. So cyclopentadiene anion जो होता है वो स्टेबल है और इस वजह से हमने उस पर क्या किया, नेगेटिव चार्ज दिया. तो ये एक रिंग के ऊपर कितना चार्ज है, -1 का. तो आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी. फिर आयरन अगर +2 है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 3d6 और एक रिंग जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी कि आपके पास जो रिंग है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, 6. सो 6 × 2 हो गया कितना, 12 और ये हो गए 6. सो यू विल गेट द 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सिमिलरली आपके पास जो है न्यूट्रल मेथड, हमको क्या करना होता है, वी हैव टू पुट अ चार्ज. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से आप हो गया 6. और अब न्यूट्रल मेथड में क्या होता है, न्यूट्रल मेथड में सीधा सीधा हम आयरन यूज करते हैं. आयरन का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 3d6 हो गया, 4s2 हो गया, मतलब टोटल हो गए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन. और 2 n5 है आपके पास, ईच n5 गिव्स द 5 इलेक्ट्रॉन. तो 5 × 2 अगर करते तो ये हो गया 10. तो इस तरह से ये होता है 18 इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में क्या होता है और न्यूट्रल स्टेट मेथड में क्या होता है, तो ये आपको उसमें लगाते आना चाहिए, राइट. ओके, नाउ देयर आर वेरियस एग्जांपल्स आर देयर. जैसे मैंने यहाँ पे लगाया वैनेडोसिन, लगाया आयरन लगा दिया. सो आप उसके जगह पे यू कैन टेक Cr Cp ट्वाइस, ये ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोमोसिन. हम यहाँ पे मैंगनीज का भी Cp2 ले सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा मैग्नोसिन. ओके, देन वी हैव फेरोसिन तो है तुम्हारे पास, देन हम COCp ट्वाइस भी कर सकते हैं, NiCp ट्वाइस. लेकिन इसमें से सारे कंपाउंड स्टेबल होते हैं क्या, नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लिखा था मैंने Cp ट्वाइस, देन लिखो आयरन Cp ट्वाइस. इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट. तो इलेक्ट्रॉन काउंट जब हम लगाते हैं तो वैनेडियम के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, और 10, ये हो गया 15. Cr के होते हैं 6 + 10, ये हो गए 16. Mn के होते हैं कितने, 7 + 10, ये हो गए कितने, 17. CO होता है कितना, 9 + 10, ये हो गया 19. Na होता है 10 + 10, ये हो गया 20. और ये हो गया आपका, ये कितना हो गया आपका, FeCp ट्वाइस कितना हो जाएगा, ये 8 + 10, ये 8. That means not all the ferrocene, not all the complexes of the sandwich material are stable, है ना. इसमें से कुछ स्पेसिफिक ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं, कुछ नहीं होता, राइट, ऐसे. सो FeCp जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और जो थर्मली स्टेबल भी होता है, मतलब हाई टेम्परेचर पर भी जो है इसको हम लेकर जा सकते हैं, थर्मली स्टेबल कंपाउंड. ओके, फिर कोबाल्टोसिन जो है वो आपका स्टेबल नहीं रहेगा. कोबाल्टोसिन में अगर देखा जाए तो उसमें 19 इलेक्ट्रॉन है. कितने इलेक्ट्रॉन है, 19. 19 का मतलब ये अंडरगो द ऑक्सीडेशन. अगर ये इलेक्ट्रॉन एक माइनस करता है तो ये बनेगी कितने, 18. तो दैट्स व्हाई कोबाल्टोसिन जो है इट अंडरगो रेडिली ऑक्सीडेशन, और इस वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो कितने वाला मिल रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन वाला कॉम्प्लेक्स आपको मिल रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और कर सकते हैं कि क्या हम CO के साथ ऐसा लगा सकते क्या, N6C6 और N5Cp. अगर मैं ये लगाता हूं तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स में, तो कोबाल्ट है आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन, बेंजीन देता है 6 इलेक्ट्रॉन, और ये देगा कितना, 5 इलेक्ट्रॉन. कितना हो जाएगा, हाँ. सो दैट मीन्स कोबाल्ट जो है कोई स्पेसिफिक कंडीशन में कॉम्प्लेक्स बना सकता. सो अगर हम यहाँ पे N6C6H6 अगर ट्वाइस लेते हैं तो अब क्या बनेगा, कोबाल्ट है ये ना, कोबाल्ट के साथ तो नहीं 21. बनेगा कॉम्प्लेक्स. 20 ये बन रहा है. सो नाउ इंस्टेड ऑफ दैट कोबाल्ट, सपोज आई टेक द क्रोमियम ना. अब देखो क्रोमियम के साथ क्या हो रहा है, सो हो रहा है सर, 6 18 प्लस क्रोमियम प्लस ये कितने, 12, मतलब 12. क्रोमोसिन का कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल है विद बेंजीन, आयरन का स्टेबल है विद. तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढ के निकालना है. जैसे मान लेते हैं मेरे पास, मैंने आपको दे दिया क्रोमियम का, किसके साथ, N6H6 के साथ. आयरन किसके साथ स्टेबल है, 5 इसके साथ, N5Cp. ठीक है. और मान लेते हैं मैंने मैग्नीज मुझे अब बनाना है, मैग्नीज के पहले से 7 हो गया, चाहिए कितने, भी 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो इसका मतलब मैं 11 इलेक्ट्रॉन अगर मुझे चाहिए तो मैं एक ले सकता हूँ ये वाला, और N5Cp. एक ले सकता हूँ मैं ये वाला. हो गया, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा, राइट. अब मान लेते हैं मुझे कोबाल्ट का कोई बनाना है, कोबाल्ट में पहले से 9 इलेक्ट्रॉन है,
नहीं, मैंगनीज का कैसे बनेगा? मैंगनीज में 7 पहले से ही है ना, 11 चाहिए थे, अच्छा बराबर। हाँ, अब कोबाल्ट में कितने 9 है, और आपको चाहिए कितने 9 ही चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो एक ले सकते हैं हम N5Cp, और एक लेता हूं मैं यहाँ पे N4C4H4। ये समझ में आया क्या? अब इनके स्ट्रक्चर्स निकालते हैं अपन। पहले कौन सा है कॉम्प्लेक्स आपका? क्रोमियम वाला, मतलब क्रोमियम विथ 2 बेंजीन रिंग एज ए सैंडविच कंपाउंड। क्रोमियम स्टेबल हो गया। अभी आयरन का देखो, आयरन का क्या बन रहा है? N5Cp ये हो गया twice. एक आयरन का, ये हो गया दूसरे आयरन, मतलब ये बन गया कॉम्प्लेक्स। अभी मैंगनीज के साथ क्या दिया है? मैंगनीज के साथ दिया है एक बेंजीन रिंग, और एक जो दी है आपकी ये वाली। कोबाल्ट के साथ क्या केस है? कोबाल्ट के साथ जो है आपको एक 4 मेंबर रिंग बनानी है, और एक जो है वो बनानी है आपको ये वाली। ठीक है। हाँ सर. अब समटाइम क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो फ्लुक्सिनल बिहेवियर करते हैं। फ्लुक्सिनल का मतलब क्या होना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, इस वाले स्लाइड में क्या बताया था कि 5 मेंबर रिंग में हेप्टेसिटी क्या क्या पॉसिबल है। 5 मेंबर रिंग में हेप्टेसिटी जो है ये पॉसिबल है, N1 पॉसिबल है, N3 पॉसिबल है, N5 पॉसिबल। इसका मतलब अगर मान लेते कोई कॉम्प्लेक्स 20 इलेक्ट्रॉन वाला है, तो हेप्टेसिटी चेंज कर देगा खुद का खुद और 18 बनेगा। दैट विल बी कॉल्ड एज अ फ्लुक्सिनल बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर लिगैंड। लेट्स से एक एग्जांपल है मेरे पास, जहां पे मैंने लिया है यहाँ पे आयरन, ठीक है, और इसमें 2 CO लिगैंड लगे हुए हैं। अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं इस कॉम्प्लेक्स का, तो कितना हो जाएगा? इसके होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, आयरन के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और CO के हो गए 4। 8 और 4 12, और 5 कितना हो गया? 17 हो गया। अब हमको रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन की, और हमारे पास अगर एक CP लिगैंड है प्रेजेंट, तो CP लिगैंड की जो अरेंजमेंट है वो कैसे हो जाएगी? नाउ द CP ligand will be arranged like this fashion. ये सो इसका मतलब जो है कि आप कॉम्प्लेक्सेस में जो है यहाँ पे हो जाएगा हेप्टेसिटी, एंड सच ए टाइप ऑफ द प्रोसेस या जो फेनोमेना है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लुक्सिन। कौन से टाइप की लिगैंड हो गई है? दीज आर कॉल्ड एज ए फ्लुक्सिनल लिगैंड वेयर दे चेंज द कोऑर्डिनेशन साइट एज पर दियर रिक्वायरमेंट। इसका माइक ऑन है क्या? ओके। यस सर. सो समटाइम ये जो है ये भी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अब मान लेते हैं आपको पता है कि कुछ ऐसे लिगैंड होते हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन साइट बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, आपने कभी देखा होगा इसको, दैट विल बी कॉल्ड एज, अब देखो ये एक है, यहाँ पे मेटल लिया मैंने, सो अब ऐसे वाले केसेस में ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है पता है? 10 इलेक्ट्रॉन डोनर है ये। अब इसको निकाल के देखो बाहर, ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन, तो 18 तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें, ये 18 के ऊपर चले गए। तो ऐसे केसेस में हम मेटल जनरली होता है इसमें यूरानियम, और ये वाले कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं यूरानोसीन। इसका लिगैंड कौन सा है पता है फिर आपको? C8H8, कितना नेगेटिव? 2 नेगेटिव। इसका मतलब एक आपकी जो रिंग है ये वाली, अब देखो ये वाला कंपाउंड अगर मैं ऐसे निकालता हूँ तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 1, 3, 5, 7। क्या हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 8। कहाँ पे डबल बॉन्ड है? 1 पे है, 3 पे है, और 5 पे, और कहाँ पे? 7 पे। सो 1, 3, 5, 7 साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। अब ये कंपाउंड देखा जाए तो एंटी एरोमेटिक है, सो इट ओबे द 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस कंपाउंड को एरोमेटिक कैसे बना जाता है? बाय द रिएक्शन विद मेटल। फिर हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड को 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, और सोडियम क्या करता है? सोडियम में पोटेशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ये? इफ यू टेक द 2, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय योर पोटेशियम या मेटल। अब जो चार्ज आएगा इस कॉम्प्लेक्स पे, कितना चार्ज आएगा इस लिगैंड के ऊपर? -2 का। नाउ 4 and 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बिकम्स कन्वर्ट्स इनटू 4n + 2 पाई। और इसीलिए
पहला वाला जो था आपका साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है? सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन डोनर है। लेकिन जैसे तुमने दो उसमें नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, वो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन डोनर। 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपको लिगैंड की जो डेंसिटी जो है, डोनेशन पावर जो है, वो पता होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है, राइट? देन वी कैन इजीली फाइंड ना, इजीली प्रेडिक्ट कर सकते। चलिए अब हम आते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर कि ये मेटालेसिन जो ये कैसे बनाया जाता है। और इसमें नोबेल प्राइज जिनको मिला था वो है आपकी कौन? एक विल्किंसन है, जिन्होंने फेरोसिन को डिस्कवर किया था। फेरोसिन का कई ज्यादा यूज किया जाता है। इवन जो ग्लूकोमीटर होते हैं, जो ब्लड शुगर जो चेक कराते हैं, उनके जो स्ट्रिप होती है उसके अंदर भी फेरोसिन का कुछ अमाउंट उसमें होता है। सो हाउ टू प्रिपेयर द फेरोसिन नाउ? हमको फेरोसिन अभी बनाना है। कैसे बनाएंगे अपन? फेरोसिन को जो है ये बनाया जाता है आयरन ट्राइक्लोराइड से। सो आयरन ट्राइक्लोराइड लिया हमने और उसकी रिएक्शन हमने की है किसके साथ में? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। और कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपका? ये वाला। दिस इज कॉल्ड एज ए साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. So this one is act as a reducing agent and it react with your iron. So iron get converts into iron dipositive. Okay. और यहाँ पे क्या होता है? Then further we are going to react with the your cyclopentadienyl magnesium bromide, the two equivalent of CpMgBr, two equivalent. Now that results in the formation of FeN5Cp, and this particular reaction is going to called as a रिडक्शन रिएक्शन. देखो कहां से क्या हुआ? आयरन ट्राई पॉजिटिव का डाई पॉजिटिव हो गया. ओके. सो एक स्टेबल प्रोडक्ट आपका बाहर चला गया यहाँ पे. ओके. एंड दिस वन इज एक्ट एज योर रिड्यूसिंग एजेंट. क्या कर रहा है? दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है. तो इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं. ओके. एंड फाइनली जो है आपका आयरन 2+ जो है वो इस केस में बन रहा था. ये ऐसे बनेगा. Okay, so we can prepare this compound like from iron dichloride से भी आप बना सकते हैं with the help of this cyclopentadienyl जो है, या cyclopentadiene भी आप ले सकते हो उसकी जगह पे. Okay, so at least one of the preparation should know how to prepare that particular your compound. And structurally हमने अभी देखा है इसको हम ऐसे बनाते हैं. Now look at this molecule S. This is your sandwich compound and that called as a ferrocene. और फेरोसिन के कुछ केमिकल रिएक्शंस भी देखने को आपको मिलेंगे कि अगर मान लेते कि ये लिगैंड और दूसरा लिगैंड सेम ओरिएंटेशन में अगर है, सेम का मतलब समझ में आता है आपके? एक के नीचे दूसरा. ओके. और ये इन दोनों में कुछ फर्क दिखता है क्या? वेदर दे आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट है सर. यस. पहले जो है एक दूसरे के नीचे इसका एंगल 0 हो जाएगा पहले वाले का. सो थीटा इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये होता है कि दिस वन इज कॉल्ड एज ए द इक्लिप्स्ड फॉर्म. ओके. और जिसका पॉइंट ग्रुप होता है D5H और एक होता है आपका स्टैगर्ड, मतलब वन बिहाइंड अदर, दैट इज अपोजिट टू दैट ऑफ फर्स्ट. स्टैगर्ड एक दूसरे के पीछे नहीं आएंगे, ये अपोजिट आएंगे. और स्टैगर्ड का जो पॉइंट ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड एज ए D5D. अब यहाँ पे मेटल आप अलग अलग ले सकते हैं, राइट? यू कैन टेक द डिफरेंट मेटल्स एंड डू द रिएक्शन. अब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो आपका कॉम्प्लेक्स है कौन है आपका? है फेरोसिन. तो फेरोसिन के ऊपर हम अलग अलग रिएक्शंस लेंगे. लेट्स से मान लेते हैं कि हैलोजनेशन रिएक्शन है, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन है, वगैरह वगैरह जितने भी रिएक्शंस होंगे वो वाले. सो अब क्या होता है कि आपका कंपाउंड पहले से स्टेबल है, 18 इलेक्ट्रॉन पहले से पार्टिसिपेट किया है उसने, इसलिए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो रेडीली होता है इसके अंदर. बट इशू जो है वो फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये वाली. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले केस में आपको फर्स्ट असाइलेटेड प्रोडक्ट मिलेगा. ये रहा मेरा आयरन एंड हियर एस. अब असाइलेशन आपका जनरली कहाँ पे होता है? कि असाइलेशन आपको पता होगा कि असाइलेशन हम करते हैं बेंजीन रिंग का. तो बेंजीन टू एसीटोफिनोन जनरली उसमें बनाया जाता है. सो नाउ दिस पोजीशन इज जनरली एक्टिव COCH3 ऐसा बन. और जब मैं नेक्स्ट टाइम असाइलेशन करता हूँ तो नाउ दिस पोजीशन विल बी एक्टिव. ओके. असाइलेशन इसको बोला जाता है. और असाइलेशन की केमिस्ट्री कैसे होती है?
यू नो द असाइलेशन रिएक्शन, पता है आपको असाइलेशन क्या होता है? Yes, sir. Okay, so it's very simple reaction. First we have to generate the electrophile with the help of that Lewis acid, and then the benzene pi electron is going to attack on the electrophile, और जो आपको रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो मिल रहा है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ऐसे आपको जनरली प्रोडक्ट वहां पे मिलता है। सो एक बार असाइलेशन करेंगे तो यहाँ पे हो गया, और जब दूसरी बार असाइलेशन आप करोगे तो जहाँ पे स्टार दिया है वहां पे आपका क्या हो जाएगा, असाइलेशन वहां पे हो जाएगा। नाउ सिमिलर टू दैट, मान लेते कि आपके पास ये वाला रिएक्शन है। नाउ दिस इज माय सैंडविच कंपाउंड एंड आई एम गोइंग टू डू द रिएक्शन विथ द ओलेफिन। नाउ किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूं मैं? इसकी ओलेफिन के साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 in the presence of what? Lewis acid और प्रोटिक एसिड और द प्रोटिक एसिड। अब सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अल्किलेशन रिएक्शन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देखो एसिड क्या करता है, इस डबल बॉन्ड पे रिएक्ट हो जाएगा, किसके? ओलेफिन के, और डबल बॉन्ड को क्या करेगा, वो CH3 बना देगा और बाजू वाला कार्बन आपका डिफिशन हो जाएगा। सो दिस वन गोइंग टू अटैक इजीली, और इसीलिए जो प्रोडक्ट है, इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे आपके? नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन बिकम्स ए, अब आपको एक क्वेश्चन में पूछूंगा, उसका आंसर आपको देना है कि असाइलेशन एंड अल्किलेशन व्हाई दे आर डिफरेंट, व्हाई यू विल गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। नाउ असाइलेशन में क्या हुआ, अभी आपने देखा, अब देखो ये आपका जो CH2 CH3 था वो यहाँ पे लग गया, और मैं दूसरी बार जब सेम रिएक्शन करता हूँ, किसके किसकी रिएक्शन कर रहा हूँ, आप कहाँ पे जाना चाहिए वो, जैसा प्रीवियस रिएक्शन में हमारा जो प्रीवियस रिएक्शन में कहाँ पे गया, इफ आई डू यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि पहले वाले में जो है वो यहाँ पे चला गया COCH3, और दूसरी बार जब किया तो यहाँ पे चला गया। बट क्वेश्चन ये है कि जब हम अल्किलेशन कर रहे हैं तो ये वाला CH2 CH3 आप कहाँ जाएगा? सर ऊपर वाली रिंग पे जाएगा, यस, व्हाई दिस इज सो नाउ? बिकॉज उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है अभी। यस, करेक्ट। तो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम या तो वहां पे क्या लगाते हैं, या तो वहां पे हम डोनर सब्स्टिट्यूट करते हैं, या तो हम वहां पे विड्रॉअल सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहले वाली रिएक्शन में जो है इस वाले की बात करते हैं, ऊपर वाले रिंग को लगा है आपका COCH3, और COCH3 जो है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, जो विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो आपकी जो रिंग है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जो है डेफिशिएंट हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल जो है उसी रिंग पे नहीं जा सकता, वो जाएगा आपके ये रिंग पे, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन आपकी होगी। बट यहाँ पे आने के बाद ऐसा समझ में आता है कि जो हम यहाँ पे ग्रुप जो लगाए, नाउ दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनर, और वो रिंग आपकी क्या हो रही है, रिच हो रही है कंपेयर टू द लोअर वन, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग पर्टिकुलरली इंक्रीजेस, और इसीलिए अल्किलेशन आपका वहीं पे होगा। ठीक है, ये भी वहां पे आप कर सकते हैं। तो सम रिएक्शंस आर एग्जांपल कार्बोनिलेशन रिएक्शन, इफ यू वांट टू डू द कार्बोनिलेशन नाउ, मतलब क्या करना है कि अगर मुझे इसको कार्बोनिल ग्रुप लगाना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करता हूँ इस साथ में, दैट इज कॉल्ड एज एन ब्यूटाइल लिथियम, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और जिसकी कंडीशन है -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और THF होना चाहिए उसका एज ए ईथर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन आई डू दिस रिएक्शन विद दिस, इट विल गोइंग टू अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, और ये इतना ज्यादा पावरफुल बेस होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब मान लीजिए कि इतना ज्यादा पावरफुल बेस है कि वो कहीं से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, दैट्स व्हाई हियर इट गोइंग टू अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, सो जनरेट दिस सिस्टम। और जैसे मेरे पास अभी ये वाला मॉलिक्यूल बन गया, अब मैं इसके साथ रिएक्शन करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, और कौन है आपका, वाटर H3O+। व्हाट हैपन नाउ, द नेगेटिव चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट ऑन रिंग इज गोइंग टू अटैक ऑन CO2। ये हमने रिएक्शंस पढ़े होंगे कभी। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आयरन ओके, और यहाँ पे जो आपका लग रहा है वो लग रहा है C डबल बॉन्ड O एंड H। नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ कार्बोनिलेशन रिएक्शन। इसका मतलब इसमें जो प्रोडक्ट आपका बना है वो क्या बना है, एसिड बना। CO2 की रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पे आप
दिखा सकते थे, यहाँ पे निकालना है आपको C double bond O like this. So the reagent is comes here, attack onto the carbon, bond will be open to oxygen. और जो O नेगेटिव बन गया उससे हम क्या करते हैं, सिंपली प्रोटोनेशन करते हैं. ओके, गॉट इट. Yes, sir. नाउ डू सम नेम रिएक्शंस ऑन दिस. जैसे मान लेते कि अगर मुझे मैनिच रिएक्शन करनी है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द मैनिच. तो फिर मैनिच रिएक्शन क्या होती है? एनीवन नो द मैनिच रिएक्शन? और हाँ, मैं आपको एडिशन में ये बताना चाह रहा था, आप रोज के 3 अमाइनो से 4 प्रोडक्ट नेम, मिलता है। यस, अमाइनो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है. आपको नेम रिएक्शंस डेली पढ़ने हैं, 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, जितने पढ़ने पढ़ो, बट नेम रिएक्शंस डेली पढ़ा करो. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द मैनिच रिएक्शन? नाउ जनरली मैनिच रिएक्शन का मतलब क्या है कि एक्टिव पोजीशन जो होती है, एक्टिव पोजीशन पे हम जो है अमाइनो मिथाइल ग्रुप वहां पे सब्स्टिट्यूट करते लगाते हैं, अमाइनो मिथाइलेशन. अब अमाइनो मिथाइलेशन का मतलब CH2, दिस इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे जो है ये आपका अमाइन ग्रुप, ऐसा लग जाता है पूरा. ओके, लेट्स सी नाउ. सो वापस से मैं वही निकालता हूँ, फेरोसिन निकाल दिया मैंने. ये रहा तुम्हारा सैंडविच कंपाउंड, और इस वाले सैंडविच कंपाउंड पे हम जो रिएक्शन कर रहे हैं वो अभी कर रहे हैं मैनिच. और मैनिच में जो रिएजेंट आपके यूज होते हैं वो होता है आपका क्या क्या यूज होता है पता है आप किसी को? फर्स्ट वी हैव टू यूज द फॉर्माल्डिहाइड. ओके, एक फॉर्माल्डिहाइड हमको यूज करना होता है, राइट. एक हमको उसमें बेस यूज करना होता है, एक हमने अमाइन यूज कर लिया इसमें R2NH. जनरली एसिडिक कंडीशन में भी ये रिएक्शन आप मॉनिटर कर सकते हैं. और ये रिएक्शन मल्टी कंपोनेंट में जाती है. मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन मतलब इसमें ज्यादा कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, राइट. मोर रिएक्टेंट्स आर गोइंग टू यूज नाउ. अब सिंपल सा आपका एक्सपेरिमेंट है ये, सिर्फ CH2NR2 ग्रुप वहां पे आपको लगाना है, ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट माय आयरन. ओके, ये वाला. एंड नाउ हियर दिस इज CH2 and NR2, ऐसा आपको मिलता है. दिस इज कॉल्ड एज अ मैनिच रिएक्शन. नाउ इफ यू वांट टू डू द नाइट्रेशन ऑन पर्टिकुलर रिएक्शन, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, नाउ सो आपके पास जो नाइट्रेटिंग एजेंट होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो जैसे H2SO4 HNO3 यूज किया जाता है, बट अलग अलग मॉलिक्यूल पे जो है वो अलग अलग आप जो है केमिकल्स यूज करके रिएक्शन कर सकते हैं. ओके, सिमिलरली सो लेट्स सी वी हैव HNO3 एंड H2SO4. ओके, दिस वन. और यहाँ पे हम जो है वो NO2 सब्स्टिट्यूट करते हैं. नाउ दिस वन. बट ये क्या होता है कि बेंजीन पे करना बहुत आसान है, बट जब हम इसकी बारी लेते हैं, फेरोसिन की जब बारी लेते हैं, तो ये वाले प्रोडक्ट मिलना बहुत 0.% में जनरली हमको प्रोडक्ट मिलता है. सो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है HNO3 H2SO4, ये जब हम फेरोसिन पे रिएक्ट करते हैं, सो इट कंप्लीटली इट डिकम्पोजेस टू योर रिएक्टेंट. और इसलिए जो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, ये मिलना चाहिए था हमको, ये हमको मिलता नहीं, नॉट हैप्पी. सो दैट मीन्स योर नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज वेरी पावरफुल, इट कांट डू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, सो जो प्रोडक्ट हमने लिखा है वो क्या है आपका बनता नहीं. फिर अब डायरेक्ट नाइट्रेशन तो इसमें पॉसिबल नहीं है, बराबर है. नाइट्रेशन तो इसमें डायरेक्ट हम कर नहीं सकते, तो फिर हम अलग अलग तरीके से जा सकते हैं. जैसे एग्जांपल, इस पे N-ब्यूटाइल लिथियम पहले डालो, तो पहले पहले मैंने ले लिया फेरोसिन, और उस पे हमने रिएक्शन किए किसकी, N-ब्यूटाइल लिथियम. सो अब जैसे आप N-ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन करते हैं, so what will be appear now? Now here you will get the anion. This is what you will get. और उसके बाद मैं आप रिएक्शन करता हूँ इसकी नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, that is called as a N2O4. And here then we can do the reaction. That is, यहाँ पे जो चाहिए था हमको desired, ये मिल जाएगा. And here this is what my nitrate. इसका मतलब डायरेक्ट नाइट्रेशन जो है वो नहीं कर सकते, बट वाया सम मल्टी स्टेप सिंथेसिस वी कैन डू दिस. और उस NO2 को आप रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, NH2 में, विद द हेल्प ऑफ SnHCl या फिर PDHCl
ये हम लेके कर सकते हैं उसके जगह पे, राइट, एंड दैट विल बी कन्वर्ट्स इनटू द अमाइन, अनदर फंक्शन ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन NH, ठीक है। Yes, sir. सिमिलरली हाइलोजनेशन का भी है, वन ऑफ द स्टेबल कंपाउंड, सो डिफिकल्ट टू प्रिपेयर द हाइलोजनेटिंग प्रोडक्ट। बट अगर हाइलोजनेशन आपको करना है तो फिर हमको वही मल्टी स्टेप का है, जैसे नाइट्रेशन किया हमने उसी तरह से आपको ये भी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू नाउ, रिएक्ट विद लेविस एसिड, लेट्स से बोरानिक एसिड और बोरानिक ईस्टर, मैंने ले लिया यहाँ पे बोरानिक ईस्टर, और बोरानिक ईस्टर के साथ अगर जब मैं रिएक्शन करता हूँ सो यू विल गेट द एडक्ट, ये हो गया आपका एडक्ट यहाँ पे, एंड दिस वन विल बी योर बोरॉन विथ OR ट्वाइस, तीन थे पहले, अभी दो आगे। अब उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट द रिएक्शन विथ मर्क्यूरियस क्लोराइड, दैट इज HgCl2, and now it will converts into the organomercurium because boron can easily replaced by the mercury. So here this is my iron, okay, here, and now it becomes a organomercurium, and then it reacts with Br2. So here results in the formation of your desired product, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट हमको चाहिए वो आप यहाँ से बना सकते, okay, and here this is my Br. So these are the reactions of your सैंडविच कंपाउंड। जो फेरोसिन हम सबसे जाना माना जो कंपाउंड है वो कौन है, ये फेरोसिन, एंड दीज आर द सम वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है।